الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تمام تعریفیں ہیں اللہ پاک کی، جس کے قبض قدرت میں ہماری اور آپ کی جان و مال، عزت و آبرو، صحت و عزت، کل تمام کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں۔ کروڑوں صلاۃ و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر، جن کے صدقے طفیل سے ہمیں جان و مال، عزت و آبرو، صحت و عزت، کل تمام کامیابیاں اور کامرانیاں ملی۔ یہاں پر تشریف فرما معزز بزرگوں، ملت اسلامیہ کے میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، جامع مسجد گدابے کی انتظامیہ کی جانب سے آپ تمام کو اور عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی پرخلود مبارکباد دیتا ہوں۔ جیسا کہ خطیب صاحب سے تاریخ انسانی کا یہ ایک منفرد واقعہ جو دنیا صبح قیامت تک ایسی مثال دینے سے قاصر ہے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بے شمار کارنامے، قربانیاں قدم قدم پر سیکریفائسز ہیں، ہم نے علماء کرام سے بارہ سنا۔ آج کے اس موجودہ دور میں ان عظیم برگزیدہ شخصیتوں کے قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ہمارے اپنے زندگیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ یہی اسوہ حسنہ ہمیں آقا انعامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، غریبوں کے غم گسار، سید ابرار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی کے اسوہ حسنہ سے ملتا، جہاں قرآن مبارکہ ہمیں ارشاد فرما رہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین پریکٹیکل نمونہ اگر کوئی ہے تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو میں ملت اسلامیہ کے معزز نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں، خاص کر جامع مسجد گدابے کا یہ انتظامیہ، کون سا بھی موقع کیوں نہ ہو، اس موقع کو غنیمت جان کر ملت کو ایک پیغام یہاں سے دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ آپ تمام لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ الحمدللہ یہ انتظامیہ اور یہ پلیٹ فارم آپ لوگوں کی کوششوں سے، آپ لوگوں کی کاوشوں سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے، آپ لوگوں کی محنتوں سے ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو اس ذمہ داری کو ہم، اس احساس کو سمجھتے ہوئے ہماری زندگی کے جو بھی کارنامے ہیں اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ مولانا نے خاص کر قربانی کے بارے میں کہا، میں آپ تمام لوگوں سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں، ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ شرپسند فرقہ پرست طاقتیں، طاغوتی قوتیں کس طریقے سے نظریں رکھے ہوئے ہیں آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ہمیں پریشان ہونے کی، ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارا نمونہ، ہمارا اخلاق ایسے موقعوں پر پیش کرنے کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ پورے عالم میں، پوری دنیا، خاص کر بھارت کے لوگ آج کے اس عید الاضحیٰ کے اس عمل کو ہمارے اوپر دیکھتے ہیں تو ہمارا فریضہ ہے بحیثیت امتی کہ ایک بہترین اخلاق کے طور پر ہمارے اس قربانیوں کے اس عمل کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ماشاء اللہ یہاں پر جو بیٹھے یا اس مسجد کے راف ناف کے جتنے علاقے ہیں، الحمدللہ ہمیں یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، ہائیلی کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، لیکن آپ لوگ بھی اس میسج کو آگے تک پہنچائے کیونکہ آپ کے پاس سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ عموماً دیکھنے میں یہ آتا چند نوجوان جانے انجانے میں، چاہے انہیں معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے پتہ نہیں، علماء کرام دوبارہ اس بات کی تلقین کر رہے ہیں، قربانی کاٹ رہے ہیں، اس کی ویڈیو چل رہی ہے، بہ رہا ہے اس کی ویڈیو چل رہی ہے، یوٹیوب پر ریلز بنا کر ڈال رہے ہیں۔ کیا
पैगाम देना चाह रहे हैं। आज पूरी दुनिया आलम इस्लाम पर किन घमोरे साजिशों से, किन मक्कारियों से, किन फरेबकारियों से इस्लाम की शनाख्त को दबाने के लिए मंसूबे हो रहे हैं, तो ऐसे नाजुक मौके पर बहैसियत एक जिम्मेदार उम्मती के कि हम एक अच्छा अखलाक पेश करना हमारा फर्ज है, उसके बरक्स हम एक अजीब व गरीब काम करना। इसका क्या इफेक्ट हो रहा है? कोई एनिमल प्रोटेक्शन की कमेटी बनाकर आगे आ रहे हैं। ठीक है, गाय नहीं करता, अलग बात है। बैलों पर पाबंदी की बात हो रही, भैंसों पर पाबंदी की बात हो रही, ऊँटों पर पाबंदी की बात हो रही, यहाँ तक के बकरे काटने पर सवालिया निशान लगाया जा रहा। तो कहीं ना कहीं हमारी भी अपनी गफलत है। आप बेहतरीन अखलाक से सैक्रिफाइस करिए, कुर्बानी दीजिए, कौन रोक रहा है? उस पे आप ब्रादर वतन को एक बेहतरीन अखलाक का एक मैसेज दीजिए। तो ये चीजों को हमें जहन नशीन करना चाहिए। और जैसा कि मौलाना ने कहा, नीटनेस, साफ सफाई, अरे आज अगयार और आज गैर हमें सिखा रहे हैं कि पाकी और साफी के बारे में, जबकि इस्लाम में तालीम दे रहा कि पाकी आधा ईमान है। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि पाकी आधा ईमान। हमें कोई सबक दे, ये उम्मत नास की उम्मत पर कंधों पर भारी भरकम जिम्मेदारी है, और गैर हमें सबक सिखा रहे हैं। अफसोस की बात, तो थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लेते हुए, दूरअंदेशी से काम लेते हुए आप अपने कुर्बानियों को अल्लाह की राह में पेश कीजिए। एक ऐसा अमल जो सुबह क़यामत तक अल्लाह ने इस अमल को जिंदा रखा। उन महबूबीन, उन मुक़द्दस और मुतबर्रिक हस्तियां किन इखलास और किन साफ नियतों से कुर्बानियां दिए होंगे, जो अल्लाह को इतना महबूब, इतना पसंद आया कि सुबह क़यामत तक इस अमल को जिंदा। एक अमल को हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम, बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वो अमल, कैसे अमल है जो आप हुज्जाज इकराम यहाँ पर मौजूद होंगे, हमने वहां पर देखा, सही करते वक्त सफा मरवा में देखा, जमजम के कुएं के पास देखा, मीना में देखा, अरफात में देखा, जमरात में देखा, उन मुबारक हस्तियों की निशानियां वहां पर मौजूद। तो बात क्या समझ गए? उनके अमाल इतने मजबूत थे, उनका इखलास इतना मजबूत था कि अल्लाह ने उस अमल को सुबह क़यामत तक जिंदा रख दिया है। तो आज कोशिश कीजिए कि हमारे भी अपने अमाल उसी तरीके से रहे, हमारे अपने अमाल से अगयार तक, गैर तक एक मैसेज जा सके कि इस्लाम आखिर है क्या। क्योंकि आज एक तरफ पूरे आलम इस्लाम में मुजाहिदीन अपने कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, जानो माल के कुर्बानियां पेश कर रहे हैं इस्लाम की वफा के लिए, इस्लाम की अज़मत के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। क्या आप वो तस्वीर नहीं देख रहे? फलस्तीन के छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने जाने दे रहे हैं, माँ पुकार कर कह रही है, अगर मेरे पास ऐसे 10 बच्चे भी होते तो इस्लाम की अज़मत के लिए मैं कुर्बान कर दूं। एक तरफ वो अमल हमारे आंखों के सामने है, तो दूसरी तरफ हमारे अपने अमाल। अफसोस, आप जैसे पढ़े लिखे काबिल तरीन लोगों से पूरी दुनिया को मैसेज देना चाह रहे हैं, आप लोग भी कोशिश कीजिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद गदाबेग का मरकज पूरे शहर हैदराबाद में एक मुनफरद शनाख्त रख रहा है। मैंने यहाँ नहीं बल्कि मलकपेट की एक महफिल में सुना, मैं नाम बल्ली में सुना जामा मस्जिद गदाबेग की मिसालें, तो हमारे कंधों पर और भारी भरकम जिम्मेदारी है। आपने देखा, कल जुमा का दिन था, हमारे ही अपने इलाके में जन चैतन्य फेस 2 में एक दर्दनाक वाकया पेश आया, दिल दहल गया। किस तरीके से दिन दहाड़े एक शख्स आता है, पूरे मंसूबे बंदी के साथ बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पे जाता है, एक ज़ईफ हजरत जो मियाँ बीवी रहते उनका कत्ल कर देते। कौन है इसके जिम्मेदार? हम और आप तमाम लोग हैं, इसलिए कि हम हमारे अपने घर के अतराफ और नाफ में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हमें फिक्र ही नहीं। इल्ला माशाअल्लाह टेक्नोलॉजी का अगर कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने खवातीन कर रहे हैं। रात के 2 बजे आप अमेज़न से कोई चीज मंगा, स्विगी से कोई चीज मंगा रहे हैं, जोमेटो से कोई चीज मंगा रहे,
ब्लिंकिट से कोई चीज मंगा रहे, सेप्टो से कोई चीज मंगा रहे, हुदूद एक हद तो रखिए ना। अगर जरूरी है, इमरजेंसी है, तो टाइम मुकर्रर कीजिए, रात के 9 बजे तक, 10 बजे तक। अरे 11 बजे कोई अननोन शख्स, अननोन पर्सन 5 फ्लोर पे, 4 फ्लोर पे, 3 फ्लोर पे आ जा, हम समझ रहे हैं इसको सिर्फ जोमेटो वाला, स्विगी वाला, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है मेरे दोस्तों। एक टोला काम कर रहा है, और टोले के पीछे ये तमाम लोग हैं। खामखा 2 लोगों की कल जान चलेगी। अल्लाह इस मौके पर मैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करना चाहता हूँ। आप तमाम लोग भी दुआ कीजिए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद कीजिए, उनके अहल खाना को सब्र जमीला अता कीजिए। ऐसे वाकयात अगर रौनमा नहीं होना है, तो हर सिटीजन को, हर कॉलोनी के हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की जरूरत है। एक तरफ गांजा, कई मरतबा जन चैतन्य के एसोसिएशन वाले, सोसाइटीज वाले, गोल्डन हाइट्स के सोसाइटीज वाले, हैप्पी होम्स के सोसाइटीज वाले, हम तमाम लोग भी कई मरतबा नुमाइंदगी करें पुलिस स्टेशन। नुमाइंदगी अपनी जगह, पुलिस वालों का काम अपनी जगह, डिपार्टमेंट वालों का काम अपनी जगह, लेकिन बहैसियत एक शहरी अगर वो जिम्मेदारी से अगर हम लेंगे, तो ऐसे काम रोकने से हम कामयाब हो सकते। तो ये चीजों पर नजर रखिए। खामखा कल जुमा का दिन, यौम अरफा का दिन, उनके घर में कैसे दर्दनाक वाकया पेश हुआ। अगर हम एहतियात नहीं करें, तो आपके घर में भी हो सकता, मेरे भी घर में हो सकता, हर एक के घर में बड़े बुजुर्ग है, बच्चे हैं, खवातीन हैं। तो अल्लाह के वास्ते जिम्मेदारी लीजिए। अगर आप आगे बढ़कर उनका हाथ, उन जालिमों के हाथ को नहीं रोक सकते, तो कम से कम हमारे तक फोन करके बता दीजिए, पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट कर दीजिए, हम जाकर रोकेंगे उन्हें। कम से कम उतना काम तो कर सकते ना। तो बहरहाल ये चीजें थे। और इस मौके पर जामा मस्जिद इंतजामिया की जानिब से GHMC डिप्टी कमिश्नर मिस्टर रवि कुमार साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने गार्बेज वेस्टेज के लिए यहाँ पर पैकेट्स भेजे हुए। हम तमाम लोग उनके ममनू मशकूर हैं। वैसे ही हेल्थ टीम, एल्लपा की पूरी टीम जो घर घर फिर कर ब्लैक पैकेट्स देने का काम किया हमारे रिक्वेस्ट पे। ट्रैफिक के हमारे CA गौर साहब का भी शुक्रिया। और जैसा कि अभी शफी भाई याद दिलाए, वाटर वर्क्स वालों से भी हमने नुमाइंदगी की थी कि न सिर्फ मस्जिद में पानी का प्रेशर कम है, बल्कि इस इलाके की पूरी जो पट्टी है वहां पर पानी का जो प्रेशर कम था, उस पर भी हमने नुमाइंदगी की थी। तो DGM मिस्टर जौहर अली साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहरहाल आखिर में मैं अपनी बात को खत्म करते हुए फिर एक मरतबा जामा मस्जिद गदाबे की इंतजामिया की जानिब से तमाम आलम इस्लाम के साथ साथ यहाँ पर जितने तौहीद के मानने वाले, शमे रिसालत के परवाने, बाद तौहीद के मतवाले, उन तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो है कि अल्लाह हमारी मदद फरमाए, अल्लाह हम पर रहम के, करम के, फजल के मामले फरमाए, अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों को हिम्मत अता फरमाए, अल्लाह वहाँ के शहीदों की शहादत को कबूल फरमाए, अल्लाह वहाँ के बहने वाले खून के खतरे को कबूल फरमाते हुए अल्लाह इस्लाम की सरबुलंदी अता फरमाए। ऐ अल्लाह जो मुजाहिदीन इस्लाम की अजमत के लिए अपने जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, अल्लाह उनकी जानों के नजरानों को कबूल फरमाकर सारी उम्मत पर रहम के, करम के, फजल के, आफियत के, खैर के मामले फरमाए। बिलखुसूस अल्लाह मुल्क भारत में अल्लाह अमन अमान अता फरमाए, यहाँ के मुसलमानों को हिम्मत अता फरमाए, यहाँ के मुसलमानों के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अमाल पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहने की तौफीक अता फरमाए। सारे आलम इंसानियत पर अल्लाह रहम के, करम के, फजल के, आफियत के मामले फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।